So, good evening, everyone. Today, I will be teaching you the concept of drift velocity. It is very important concept, and you must know about it. So, let us look into what is drift velocity and how we can use this in the equations, or how the equations that you must have seen in the book has come. The concept is very important. So, let us take a conductor. You may need your notebook today because I'm doing a little bit of theory. So if you consider a conductor, you know there are large number of free charges inside the conductor. And these electrons are always moving in random directions. So the electron will start from one position. It will collide with an atom here, and then it may go like this. Then you have another electron also, the electron which is colliding with the atoms will go in various directions. So this is happening to each and every electron inside the conductor when no electric field is being applied. So there are a large number of electrons in a conductor. So I've taken a small piece or cross section of a conductor, and all the electrons are moving in all directions with some energy. So where did they get this energy because of which they are moving and colliding with the atoms and then having multiple random directions? You know that the temperature, cold temperature will be around minus 273 degrees. So if you take our room temperature, say you take 27 degrees Celsius, then we can say that in Kelvin it is around 300 Kelvin. So they are getting the energy to move around. They are getting the energy for moving, or their velocity is called as thermal motion. So they are basically getting the energy from the temperature around, or the room temperature. And because of this, these electrons are moving with some velocity. And therefore, this particular velocity that they are having is called as thermal velocity. So I repeat once again, we are taking a cross-sectional area of a conductor. It has large number of electrons. The electrons are moving in random directions. They are colliding with atoms and having multiple directions. But these movement of electrons is giving you some motion, there is some velocity. So where did they get the energy from? That energy is because of the room temperature. That is, say, if you're taking 27 degrees Celsius, then it is 300 Kelvin. And because of this, they are moving in random directions. And that velocity is called as thermal velocity. So we can say that this thermal velocity of electron is around 10 raised to 4 meters per second. So every electron is moving and has its own thermal velocity, and therefore it is 10 raised to 4 meters per second for every electron. So now if we have large number of electrons inside a conductor, we can find out what is the total velocity. So I can say U1 is the thermal velocity of the first electron. Then U2 is the velocity of another electron. Hence, I can say that UN is the velocity of the nth electron, because we'll have large number of electrons. We are talking about crores of electrons. So what will be the average thermal velocity? So let's call it as U bar, which is the average thermal velocity, which will be nothing but U1 plus U2 upon this whole thing upon N. So you are aware that 1 cubic meter of a conductor will have around 10 raised to 28 electrons. So that is millions of electrons, करोड़ों electrons है. तो आप इसको imagine करें कि इसकी average thermal velocity क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? Thermal velocity of per electron is 10 raised to 4 meters per second. तो आपके हिसाब से what is the average thermal velocity of electrons
in a conductor? Anyone? Yes, the average thermal velocity of the conductor will be nothing but zero. Why is it zero? Because velocity is a vector quantity and all these करोड़ों जो electrons हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं कि आप ऐसा imagine करें कि 10 लाख लेफ्ट में गया, 10 लाख राइट में गया, 10 लाख नीचे की तरफ गया, 10 लाख ऊपर की तरफ गया, 10 लाख इस तरफ गया, 10 लाख पीछे की तरफ गया. तो जिस तरीके से वो जा रहे हैं और उनके हर एक की वैल्यू कितनी है 10⁴ meters per second, the average thermal velocity will be nothing but zero because of their relative motion. So अगर देखा जाए so the thermal velocity of an individual electron is very high, but the average thermal velocity is zero in a conductor. ये fact आपको याद रखना पड़ेगा. हर एक का zero नहीं है, हर एक का 10⁴ meters per second है, यानी कि the thermal velocity of an individual single electron is very high, that is 10⁴ plus 4 meters per second. But जो average thermal velocity होगी of all the electrons in a particular conductor, that will always be zero. So we have understood what is the thermal velocity or average thermal velocity formula. So I have designated or used U bar average as a notation for average thermal velocity. So now what will happen? So this is the initial condition. अब इस कंडक्टर को मैंने बैटरी लगाया, मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. तो हमें फर्स्ट पार्ट समझा है, ये सेकंड पार्ट समझे. जब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इसका ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइड नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब है हर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर का हर एक इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. जैसे ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, हम every electron will experience a force when electric field is applied across this conductor. अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी. So what is the force? The force acting on this conductor is nothing but minus E into E bar, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. So the force is nothing but minus E into E bar. And the direction of this force is nothing but so F bar is nothing but minus E into E bar, because you know force is nothing but QE, और इसकी direction जो है इस तरफ होगी. जैसे आप सोच सकते हैं नेगेटिव पार्टिकल है तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. Now you know force is mass into acceleration, so I can define acceleration as force upon mass and therefore minus E upon m. मतलब हर एक पार्टिकल एक्सेलरेट होगा. So in the presence of electric field, all the electrons will experience acceleration. So I hope the second point is clear. First point is about thermal velocity. जब बैटरी हमने नहीं लगाया था तो थर्मल वेलोसिटी होगा किसका? हर एक इलेक्ट्रॉन का. एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगा. ये पॉइंट फर्स्ट पार्ट से आपको समझना चाहिए. सेकेंड पार्ट में हमने हर एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मतलब इस कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो हर एक पार्टिकल पर, हर एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा,
सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ई अपॉन एम, जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने ये साइक्लोट्रॉन में भी देखा है. अब तीसरा टर्म क्या है जो आपको समझना है. द नेम इज कॉल्ड फ्री पाथ. इसको हम फ्री पाथ कहते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक 2 वर्ड्स हियर जो आपको याद रखना है, फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन पीरियड. सो जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ कोलाइड हुआ है और फिर वो जा रहा है और दूसरा एटम यहाँ पर है, तो उसका जो कोलिजन होगा इससे यहाँ पर होगा. तो यहाँ पर उसकी कोलिजन हो चुकी है और वो जा रहा है और यहाँ उसकी कोलिजन हो रही है. सो ये जो पाथ रहता है जहां पर वो कहीं पर भी और कोलाइड नहीं कर रहा, इसको हम फ्री पाथ कहते हैं. Electrons in a particular conductor are always going through number of collisions with the atoms. The distance between two collisions is called as the free path. और कितने टाइम में ये हो रहा है, the time period या time taken between two of them is called as the relaxation period. So this is known as the relaxation period, which is nothing but the time taken between two collisions. तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा है उसको कोलाइड करने के लिए, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. Okay, I'll just change the lighting. Just give me a minute. So I hope it's visible now. So the time taken for an electron to go from one collision to another collision, so उसके बीच में जो distance होता है, उस distance को हम free path कहते हैं. और जो टाइम लगेगा उसको दो collisions के बीच, उसको relaxation period कहते हैं. सो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आपका वेलोसिटी तो बढ़ते ही जाएगा. सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग. आर यू गेटिंग इट? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से आपका जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी तो बढ़ते ही जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग एक्सेलरेशन in the presence of electric field. So then what happens? What happened to the final velocity of the particle? So this concept is clear, free path and relaxation time. So what is the final velocity of that particle? हमने initial velocity देख लिया जिसको हमने thermal velocity नाम दे दिया. So final velocity after the electric field is applied, what happens in the particle velocity? So can I say V is U plus A into tau 1 कहते हैं हम इसको. T नहीं बोलेंगे यहाँ पे, tau बोलेंगे उसको. तो v हमारा क्या है? v हमारा फाइनल वेलोसिटी है. u हमारा यहाँ क्या है? अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो ये v1 होगा, u1 होगा और ये tau 1 होगा. सो द थर्मल वेलोसिटी u1 जो है वो थर्मल वेलोसिटी है यहाँ पर, tau जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है और v1 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है. सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ कि एक दूसरा पार्टिकल है तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू tau 2. इस तरीके से जितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना हमारा वेलोसिटी भी होगा, दैट विल बिकम un प्लस a tau n. सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. So you can see that the velocity is changing. अब ये जो सारे फाइनल वेलोसिटीज हैं, ध्यान से सुने,
ये जो सारे फाइनल वेलोसिटीज हैं आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एवरेज अगर हम इन n इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे, ये जो फाइनल वेलोसिटी की अगर हम एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप इट्स क्लियर। पहले हमने थर्मल वेलोसिटी देखा, फिर हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो हमने दो वर्ड्स पढ़े यहाँ पे, फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। The time taken between two collisions will be the time taken is nothing but called as the relaxation period. And you know that when the particle is in electric field, it is experiencing force and it is getting accelerated. Hence, the average velocity of electron is known as the drift velocity. So let us understand what is drift velocity. Let us understand how to go about with it. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 बार प्लस v2 बार प्लस डॉट 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 प्लस vn बार अपॉन n. So what is v1? You know it is u1 plus a into tau1 plus u2 plus a tau2 plus dot 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 un plus a tau n upon n. So अगर हम इसको सेपरेटली लेंगे, दैट इज u1 plus u2 plus dot 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 plus un plus a सेपरेटली लेंगे tau1 plus tau2 plus dot dot plus tau n upon n. सो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने सेपरेट करके लिखा, थर्मल वेलोसिटी साथ में लिखा, एक कॉमन लिया और रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ टाइम साथ में लिया। तो हमने एवरेज निकाल लिया, क्योंकि हर एक का जो टाइम रहेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम रहेगा वो सेम नहीं हो सकता, इसकी वजह से उसका एवरेज निकलेगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस u1 plus u2 plus dot dot un upon n क्या है? ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या है? अगर हम सेपरेट कर लेंगे उसको, u1 plus u2 upon n plus a ये डिवाइडेड बाय n, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या है? यस, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। तो ये जो वाला पार्ट है विच आपको u1 plus u2 plus dot 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 un अपॉन n मिल रहा है लेफ्ट साइड पे, और ये क्या आएगा, a tau1 plus dot 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 plus tau n अपॉन n इस तरफ मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट तो आपका थर्मल वेलोसिटी है। और आपको जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी, राइट? तो इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है वो पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या? आपको मिल रहा है ड्रिफ्ट इज इक्वल टू a इंटू ये जो tau1 प्लस द होल अपॉन n है उसको हम टाउ लिखेंगे। मतलब ये हमारा एवरेज हमने निकाला, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। सो ये जो टाउ है इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड, इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड। सो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ रहा है? इट इज कमिंग a टाउ। बट थोड़ी देर पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला था। हमने डाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ई अपॉन एम। तो हम ड्रिफ्ट का क्या फॉर्मूला डाल सकते हैं?
हम ड्रिफ्ट डालेंगे माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी तक मैंने ड्रिफ्ट क्या है दिखाया नहीं आपको, सिर्फ इक्वेशन डिराइव किया है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसका डेरिवेशन में हमारा पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो है माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। सो प्लीज टेक दिस डाउन। तो पहला फॉर्मूला नहीं भूलें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इट इज माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी अराउंड 10⁴ मीटर्स पर सेकेंड होता है, बट एवरेज थर्मल वेलोसिटी उसका 0 होता है। जब हम उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइड हो रहे हैं उनके बीच का जो पाथ होता है या डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं बिटवीन टू कोलिजन्स, उसको हम फ्री पाथ कहते हैं। एंड द टाइम पीरियड दैट इज देयर बिटवीन दोस कोलिजन्स इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम। नाम ही ऐसा है, रिलैक्स है, मतलब कोलिजन हुआ ही नहीं है वो टाइम पे, तो दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने क्या किया, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल फाइनल वेलोसिटी निकाला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका रिलैक्सेशन टाइम सेम हो। कुछ लोगों को कम में इसमें कोलिजन हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट एक्सेलरेशन तो सब एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के हमने एवरेज फाइनल वेलोसिटीज निकाले हर एक इलेक्ट्रॉन के, जिससे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला मिला, और वो है माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। आई होप दिस का अभी तक क्लियर है। कुछ डाउट है तो आप मुझे बताएं, ताकि देन आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। Is this clear, everyone? Have you finished writing? Okay, thank you. So I'll proceed now. Moving on to the next formula of drift velocity. क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो आप ये फॉर्मूला लिख के रखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट, आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब मैं चाहती हूं कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इमेजिन करें, यानी कि विजुअलाइज करें. सो हाउ डू आई विजुअलाइज इट? ये हमारा कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, एंड एज आई सेड मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे आ रहा था. सो दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is how your imagination should go. So this is how it will go. तो ये absence of electric field में हुआ. जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, लेफ्ट से राइट जा रही है. अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आप जानते हैं मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है कि फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में होगी.
मतलब हर एक पार्टिकल जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट हर पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 4 है। हर एक पार्टिकल विल एक्सपीरियंस, जो भी मोशन है, जो भी वो जा रहे हैं, उससे उनको फोर्स एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब आप सोचो इनके पाथ को क्या होगा, इनका जो पाथ है, जो ये भाई ये जो फर्स्ट वाला था ऐसे जा रहा था, उसको लेफ्ट में खींचा, एक खिंचाव जो है वो उसको लेफ्ट में एक्सपीरियंस होगा, लेफ्ट में उसको खींचा जा रहा है, तो उसकी जो पाथ है वो स्लाइटली चेंज होकर यहां पर आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो उसका एक्चुअल पाथ था और ये अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसकी वजह से वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ लेफ्ट में, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि आप देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया अपना यहां पर फर्स्ट केस में। सेकेंड पार्टिकल को देखिए ये ऐसे जा रहा था और अभी ये जो खींच है उसकी वजह से मान लेते वो यहां आ गया, क्योंकि जो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ ही लग रही है। तो यहां पर जो दोनों के बीच का जो वेलोसिटी है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि ये देखो ये v2 आ गया, ये v2 है। ये जो ऐसे जा रहा था इसका भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा, बिकॉज फोर्स सबको सेम लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो ये भी इस तरफ से नेट जो फोर्स आएगा उसको हम v3 बोलेंगे। ये जो पार्टिकल है ये भी एक्सपीरियंस करेगा टू द लेफ्ट, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलेंगे v4। तो आप देखिए हर जगह पे आपको वेलोसिटी दिख रहा है, सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। क्या आप बोल सकते हैं कि हर एक का ड्रिफ्ट डायग्राम्स के हिसाब से सेम लग रहा है? हर एक का ड्रिफ्ट, अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये देखो ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखना इस बार सब, अब सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटीज देखो कहां जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। थर्मल वेलोसिटी में वैसा नहीं था। थर्मल वेलोसिटी में कुछ लेफ्ट जा रहे थे, कुछ राइट जा रहे थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे, कुछ डायगोनल जा रहे थे, और फिर नेट इफेक्ट उसकी कैंसिल आउट हो रही थी। जबकि आप अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझे तो आप समझ रहे कि हर एक की ड्रिफ्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। याद रखना ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। हर एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जबकि थर्मल वेलोसिटी थी 10⁴ पर सेकेंड। बट फायदा क्या हुआ, यहां पर हर एक की वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है और ऐसे करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो सबकी नेट इफेक्ट बहुत इफेक्टिव होगी। यानी कि यहाँ पर द नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी 0, बिकॉज ये सारे लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं। सो नेट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर मैं समझना, मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इफेक्टिव and thermal velocity is not. I can say that the average, मतलब एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो काफी इफेक्टिव होगी इस केस में, और जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो 0 हो गई। सो एवरी, मतलब एवरी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ शिफ्ट, एंड उस शिफ्ट जो वो एक्सपीरियंस करता है, जिसकी किसकी वजह से ये हो रहा है, फोर्स की वजह से। हर एक का जो शिफ्ट है वो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से हो रहा है। हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं हर एक के लिए छोटा ही है, बट जब हम इस सबकी पूरी एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी लार्ज compared to what happened in the case of thermal velocity. Is this clear to you?
So you may take the diagram down for understanding. Can I proceed? Okay, thank you. Okay, I'll wait for 1 minute. Somebody's asked me to wait. Okay, so now proceeding. अब ये जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जिसको माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ई जो है वो कांस्टेंट है, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। कैपिटल ई तो कांस्टेंट ही है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने लगाया होगा। m mass of the electron will also be constant, and this tau is nothing but the average relaxation period. What I'm trying to point out is that v is equal to u plus a tau, हमने जो लगाया था फॉर्मूला, इसमें ये जो tau है, this will keep on changing. That means उसका और v का डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कंप्लीटली किस पर डिपेंड हो जाएगी? रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड हो जाएगी। So you must understand this. Now that also, even if you're considering drift velocity for different particles, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट है for a particular particle is always going to be constant for a particular particle. अगर मैं कॉपर ले लूं, एल्यूमिनियम ले लूं, मैं आयरन ले लूं, आई थिंक देयर वाज एन इंटरप्शन। सो अगर मैं कॉपर ले लूं, आयरन ले लूं या एल्यूमिनियम ले लूं, याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दिस वैल्यू इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो इस वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे? कैन एनीबॉडी गेस व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी दिस इज? अगर आपको ऑप्शन दिया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शंस ऐसे दिया गया है, इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज एक्सेलरेटेड, then what will be your answer? What kind drift velocity कैसा मोशन है? Yes, remember that drift velocity is always uniform velocity because in a particular metal it is always a constant. So drift velocity is uniform. आपने डायग्राम भी देखा, देखो हर जगह पे हर एक जो एक्सपीरियंस कर रहा था, तो इट्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मत भूलना, ये कॉमन मिस्टेक है। तो drift velocity is nothing but uniform velocity and it is a constant because it is not going to change with time. वो जितना drift हो रहा है वो उतना ही होगा, and therefore it is always uniform velocity. Thermal velocity अगर देखा जाए, once again repeating, it is high, very high compared to drift velocity.
But because it is going in random directions, its net effect is going to be zero. Hence, it is not effective in making any current. इसलिए थर्मल वेलोसिटी क्या करंट बनाता है? नहीं बनाता है. थर्मल वेलोसिटी करंट नहीं बनाता है. जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो इट इज वेरी स्मॉल, बट इट इज इन द सेम डायरेक्शन, और सारे इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आप ड्रॉ करके दिखाते हैं. जब भी आपने करंट के बेसिक्स पढ़े रहेंगे, तो जो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, वो जो डायरेक्शन आप दिखा रहे थे, वो सारे किसकी थी? वो ड्रिफ्ट है. ड्रिफ्ट मतलब शिफ्ट होना, थोड़ा सा अपने जगह से, अपने पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट होना. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि करंट, इफेक्टिव करंट कौन बना रहा है? ड्रिफ्ट वाला वेलोसिटी बना रहा है, और थर्मल वेलोसिटी करंट नहीं बनाता है. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट for any metal. Drift velocity is uniform velocity. Drift velocity is responsible for making current, and thermal velocity is not effective in making the current. I hope this point is very clear to you. Drift velocity is not changing with time. It is uniform velocity. It is effective compared to thermal velocity. Thermal velocity cannot make current, and hence drift velocity is the one making current because it's all going in the one particular direction. Clear hai bacha? So I hope this is clear to you. Okay, thank you. Now relation between, तो हम जो करंट का हमेशा फॉर्मूला देखते हैं, अगर आप कोई भी बुक उठाते हैं तो आप देखते हैं कि देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच इज गिवन विथ रिली ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. सो आई एम टेलिंग यू हाउ इट कम्स. दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So what is the relation between current and drift velocity? Can you see the screen that I have written relation, or is it stuck? Just have a slide out. Can you see that I have written a relation between current and drift velocity? No, you can't see it. 1 minute. Now I think it should be visible. I have written relation between current and drift velocity. Yes, thank you so much. Yeah, the screen was stuck. Now it's fine. Yeah. So what's the relation between current and drift velocity? So if I consider the magnitude of the formula that we had got, that is Vd is equal to E tau upon m. E upon m is nothing but specific charge. Capital E is the electric field, and tau, as we now know, is the average relaxation period. Now, when we consider a conductor, and when we talk in terms of current, we always talk about the area of cross section of the conductor, the length of this conductor. Electric field we know is nothing but E bar. Now we know drift velocity, so I can say that this will be the drift velocity. This is your imagination.
and you can say that there are n number of electrons per unit volume. So then what is the total charge, या जो net charge इसके अंदर होगा, total charge क्या होगा? So what is the total charge inside the conductor? So if I'm considering the conductor, I have to consider in terms of volume. So first I can say that volume तो मुझे पता है, volume क्या है मेरा, A into L मेरा volume होता है. अगर उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे n भी कंसिडर करना पड़ेगा. और ये जो n इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक की चार्ज अगर Q है, जिसको हम E बोलेंगे, तो उसको E बोलना पड़ेगा. ये बन जाएगा हमारा टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. आई रिपीट, ये हमारा कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, L उसका लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस भी हम कंसिडर करेंगे लेटर ऑन, R इज इक्वल टू रो L बाय A. n number of electrons है per unit volume. Then the total charge inside the conductor, starting from the volume, volume is area into length. इसके अंदर n number of electrons हैं, तो इससे हम Ne को भी कंसिडर करेंगे. ये हमारा हो गया नेट चार्ज. अगर आपको नेट चार्ज मिल गया इनसाइड अ कंडक्टर, विच इज नथिंग बट NEA into L. So you know that when we apply electric field, due to drift velocity, current will start flowing. And what is current? Current is nothing but, अगर आपको याद है fundamentals of current electricity, हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ से और हम देखते हैं कि कितने चार्जेस इसके पार जा रहे हैं पर यूनिट टाइम. कितने टाइम में कितने चार्जेस इसके पार हो गए, उसी को हम करंट कहते हैं. सो करंट is nothing but Q upon T. In other words, it is the net charge upon time. तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां है और वो जब पूरा घूमकर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, जहां पर हमने कटिंग किया है, जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट साइड वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इसको क्रॉस करेगा, तब हम कहते हैं कि ये द टोटल टाइम टेकन होगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर. तो जब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे लेंथ को कवर करके इस क्रॉस सेक्शन के उस तरफ आएगा, तो हम कहते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स. सो द टाइम टेकन फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर in a time that the electron travels through the total length. मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जब वो भी पार कर जाएगा, तो हमारा टाइम होता है L अपॉन VD. ये आपको याद रखना है. I is equal to Q by T and the total time taken for all the electrons to cross the L length of the conductor. So the total time is the last electron, because बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे. जब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके इस तरफ पार निकल जाएगा, तो हम कहते हैं कि द टाइम टेकन इज L अपॉन VD. अब आसान हो गया, हमारे पास ऑलरेडी टोटल चार्ज का फॉर्मूला है, हमारे पास टाइम है, तो आपको सिर्फ इसको इस इक्वेशन में डालना है. सो ये मैं जरा यहाँ एडजस्ट करके लिख रही हूँ. तो हमारा I था Q टोटल अपॉन टाइम और हमारा टाइम था L अपॉन VD. अब इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ. Q मेरा क्या है, NEA into L अपॉन, ये हो गया L अपॉन VD डिनोमिनेटर में. तो ये VD ऊपर चला जाएगा, ये L और L कैंसिल हो जाएगा, तो ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया. तो आपको मिल रहा है NEAVD, जो आपने काफी बार देखा रहेगा बुक्स में. I इज इक्वल टू लिखते हैं NEAVD. So please take it down. This is formula number 2. So from this equation आप मुझे बता सकते हैं कि I किस पर डिपेंड करता है. Can you tell me कि इस इक्वेशन के हिसाब से
आपको क्या लगता है कि I किस पर डिपेंड करता होगा? सोच के बताना कि सेकेंड फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या लगता है कि I किस पर डिपेंड करता है? इस फॉर्मूला में I इज इक्वल टू NeAVD, ये सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, एरिया. The answer to the question I asked you is that current is directly proportional to drift velocity. Current is directly proportional to drift velocity. तो अभी सारी चीजें कनेक्ट करके देखें, जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा उस कंसेप्ट को अच्छे से समझे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से शुरू हुई थी? U प्लस AT के फॉर्मूला से, वहां से शुरू हुई थी. और वो कहां से आया था? वो फोर्स लगी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था. मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भर भी उतना ही फोर्स शिफ्ट होगा, बिकॉज फोर्स तो अपना QE है. तो याद रखना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. करंट डिपेंड्स strictly on drift velocity only, has nothing to do with area or NE. You understand? I hope this is clear to you कि current is directly proportional to drift velocity only. So answer to the question that I just asked you is nothing but only drift velocity. Is this done? Okay, so now I'm just putting one more formula for you. So we have two formulas of drift velocity. One is minus E capital E upon M into tau. And the second one is related to current. So यहाँ पे drift velocity का formula क्या हो जाएगा? Current divided by NEA. Right? So current divided by NEA is also a formula of drift velocity. अब जो है एक और छोटा सा एक पॉइंट आता है यहाँ पे. और उस चीज का नाम है करंट डेंसिटी. मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड, करंट डेंसिटी. एनसीईआरटी वगैरह बुक्स में उसको माइनस मतलब छोटे जे से बोलते हैं. तो यहाँ पर मैं उसको जे ले रही हूँ, जे. करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट अपना चार्ज अपॉन टाइम बट पर यूनिट एरिया लेना है. सो इट इज एज सिंपल एज, फर्स्ट फॉर्मूला याद रखे, इट इज Q अपॉन T, नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग पर, बट उसको एरिया भी कंसिडर करना. अब Q अपॉन T आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है? करंट. सो करंट अपॉन E. सो करंट डेंसिटी जिसको हम J देते हैं, जिसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा. करंट डेंसिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. मतलब आई एम गिविंग यू द रिलेशन बिटवीन J, sigma and E. J is current density, sigma is conductivity, जो रो होता है resistivity का उल्टा,
and E is nothing but electric field. हमें ऑलरेडी पता है कि VD is minus E upon M times of tau, which हमारा एक्चुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. अब J जो होता है is nothing but NEVD. Do you agree? कहां से आया ये? हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? I is equal to NEAVD ऐसा लिखा था. तो अगर हम इस A को यहां लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो I अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो गया? NEVD हो गया. तो हमारा I अपॉन A क्या होता है? हमारा I अपॉन A होता है J. J इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, जो मैंने यहां आपको डिराइव किया. तो ये I अपॉन A को लिखेंगे J इज नथिंग बट NEVD. इतना लिख के रखे, देन आई विल प्रोसीड. सिग्मा बेटा इज कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी का रिवर्स होता है. आप लिखते हैं ना R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो जो होता है वहां रेजिस्टिविटी होती है, तो उसका रिवर्स इज कंडक्टिविटी. जैसे कंडक्टेंस होता है, हाउ मच यू नो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंडक्टिविटी नेचर क्या होती है, कितना फ्लो कर सकता है. जैसे हम कहते हैं कि conductivity of a certain metal will be more depending on the free charges and so on. Just tell me when you're done writing, because I will not know. Okay. So what I want you to do now is, अब ये जो फॉर्मूला है अपना J is equal to क्या है? NEVD. और अपना VD क्या है? VD is nothing but minus E upon M into tau, right? तो ये फॉर्मूला को, ये आप एक फॉर्मूला ले सकते हैं. सो हमने J का कितना फॉर्मूला देख लिया. यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये उसका सेकेंड फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, ये उसका थर्ड फॉर्मूला है. तो J इज NEVD. अब हम ये जो फॉर्मूला है VD का, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. VD के फॉर्मूला को हम वहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. So what will happen here is J, which was NEVD, can be written as N electron, assuming it is minus E, and VD is minus EE upon M times of tau. So this will become J is nothing but NE square tau upon M into E. अब ये जो है, ये जो पूरा फैक्टर आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला जो फैक्टर है, this factor is nothing but sigma. That's why they write this as J is equal to sigma E, where sigma is nothing but NE square tau upon M, which is nothing but 1 upon rho. Resistivity का रिवर्स होता है. तो ये आप समझ के ले कि अगर कुछ भी ऐसा दिया है जहां पर N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E स्क्वायर है, टाउ है, M है, ये एकदम बेसिक 11th स्टैंडर्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता रहने चाहिए, बिकॉज इट कैन कम फॉर CT और इट कैन कम फॉर नीट, बिकॉज क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक.
So I can further write a lot of things because if I know this, then R is equal to, आपको पता है rho L upon A होता है, rho L upon A होता है. So here I can write this as M into L upon N E square tau A. ये मेरा resistance का formula हो जाएगा, जहां पर मेरा रो जो है has now become M upon N E square into tau. तो ये भी आप लिख के रखें, this will be helpful to you. So either we can say J is equal to sigma E, या हम E को कह सकते हैं J upon sigma, बट 1 अपॉन सिग्मा रो होता है, तो हम इसको E को E का भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पे. E इज इक्वल टू रो इंटू जे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेजिस्टिविटी में भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू रो जे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So I hope this question is this kind of theory is clear to you. This is all about drift velocity. So I hope that was clear. Another point I wanted to discuss is the potentiometer. तो drift velocity clear हो गया? किसी को drift velocity में कोई doubt है? Last part लिख के रखिए please. पोटेंशियोमीटर में मुझे डिस्कस करना था सेंसिटिविटी पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे. I will quickly revise with potentiometer also, and then we will wind up. ठीक है? तो next lecture में what do you want? Do you need any concept or do you need the MCQs? MCQs अगर कर रहे हैं तो हम full physics ही करेंगे. अगर आपको separately कुछ चाहिए तो आप please just put the concept down. So as I said, this was asked last time in the lecture, तो हम वो कर सकते हैं. Just tell me which concepts. You can message me, so then जैसे आपने last time बोला था मैं वैसे ही कर रही हूँ. I'm just following the list that you have given me. I thought it is better we do full physics because एक-एक topic करे जाएगा तो बहुत lengthy हो जाएगा, right? We will try to do full. Okay, yeah, I get it. Okay. So पोटेंशियोमीटर को एक क्विक रिवीजन डालते हैं और उसके सेंसिटिविटी पे मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीजें लिख के रखें. थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, so it will be always helpful to you. Let us quickly go back to what we learned about potentiometer, which you already know. You're smart children, you're studying very well. I know that in this pandemic you are studying very well. I believe it, right? So now this is the battery, this is the plug key, this is the rheostat. Work very hard, utilize the time given to you जितना हो सके. अब ये मत प्रार्थना कर लेना कि एग्जाम होए ही नहीं, वो तो होने ही वाला है. So now let's see this. अगर आपको याद है ये सेल है, ये प्लग की है, ये रियोस्टेट है. Capital R is the resistance of this long potentiometer wire, and of course I should consider the internal resistor of the main cell, that is small r. ये एक सीरीज सर्किट है, तो इससे जाने वाला करंट I है. A को हम हायर पोटेंशियल एंड और B को हम लोअर पोटेंशियल एंड बोल सकते हैं.
So you remember what was potential gradient? K का पहला formula था V upon L. L is the length of the potentiometer wire, which is nothing but IR upon L. R upon L is called sigma. So it is I sigma. याद रखना sigma यहाँ conductivity नहीं है, it is resistance per unit length. Then R can also be written as rho L upon A. So ये हो जाता है I rho upon A. Then K had another formula, that is I क्या होता है? I is the total current. Total current क्या होता है? Voltage upon R plus small r plus RH times of L. So I can put this as ER upon R plus small r plus RH times of L, which can further be written as E sigma upon R plus small r plus RH. याद है? तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लिखें. Sensitivity of a potentiometer can be increased. याद रखना, the sensitivity can be increased by decreasing the potential gradient. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो याद रखना है. Sensitivity of a potentiometer can be increased by reducing the potential gradient. So इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि for a potentiometer wire of fixed length हम इस sensitivity को कैसे बढ़ा सकते हैं? Can you tell me anybody that how can I increase the sensitivity? एक तो मैंने आपको बता दिया कि potential gradient reduce करना है, और किस तरीके से आप sensitivity को potentiometer में बढ़ा सकते हैं. दो factors हैं. I want to know in terms of two things. One is length of the potentiometer wire and दूसरा है current in the circuit. ये दोनों factors के को दिमाग में रखते हुए आप मुझे बताएं कि sensitivity of potentiometer को मैं कैसे बढ़ाऊं. Yes, excellent. So two things that you have to remember is that the sensitivity of a potentiometer can be increased. Sensitivity को बढ़ाना है तो तीन फैक्टर्स आप याद रखेंगे. K को कम रखना है, सेकंड लेंथ को बढ़ाना है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर विल बी इंक्रीज्ड, एंड अगर हम फिक्स लेंथ की बात करें, यानी कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर है फिक्स लेंथ का, तो K को डिक्रीज करना है और करंट को रेड्यूस करना है. तो यानी कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि करंट को जब हम रेड्यूस करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो रेड्यूस हो जाता है, और जब वो रेड्यूस हो जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. सो ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. और हम इस करंट को कैसे रेड्यूस करते हैं? हाउ कैन आई चेंज द करंट इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट? एनीबॉडी? अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है तो मुझे करंट डिक्रीज करना है. तो जो सेटअप आपको बताया गया, आपको क्या लगता है कि करंट कैसे डिक्रीज करेंगे? यस, एडजस्टिंग द रियोस्टैट. आंसर इज एडजस्टिंग द रियोस्टैट. जब हम रियोस्टैट को एडजस्ट करेंगे तो हमारी करंट कम हो जाएगी. अगर हमारी करंट कम हो जाती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. ओके, फिजिक्स, we must always love physics for its wonderful explanation. So rheostat कम resistance, कम resistance, कम current, rheostat से हम adjust करेंगे. Okay,
रियोस्टैट से हम एडजस्ट करेंगे और जितना हम रियोस्टैट से एडजस्ट करेंगे, इन अदर वर्ड्स हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, राइट? सो रियोस्टैट से हम एडजस्ट करेंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो हम सेंसिटिविटी को पोटेंशियोमीटर का चेंज कर सकते हैं. नाउ कैन एनीबडी टेल मी, अगर मैंने पूछा अ पोटेंशियोमीटर को क्या हम एक आइडियल वोल्ट मीटर बोल सकते हैं? You have to just tell me yes or no. Can the potentiometer be called as an ideal voltmeter? Yes, a potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter with infinite resistance, as it does not draw any current from the source of EMF at the null point. कभी मत भूलना, a potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter with infinite resistance, as it does not draw any current from the source of EMF at the null point. Also remember, in a potentiometer, ये जो potentiometer होता है उसकी जो uses होती है, it can be used to measure and control stress, it can measure temperature. जहां पर भी potential difference की बात आती है वहां पोटेंशियोमीटर की बात आएगी. तो टू मेजर pH और फ्रीक्वेंसी, हर जगह पे पोटेंशियोमीटर की यूज होती है. So I hope this sensitivity point is clear to you. So sensitivity of potentiometer can be increased by reducing the potential gradient. So increasing the length of the potentiometer wire, or agar fixed length hai, so potential gradient can be decreased by reducing the current in the circuit with the help of a rheostat. And a potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter with infinite resistance, as it does not draw any current from the source of EMF at the null point. So these are some topics that I wanted you to know. Rest formulas तो आप जानते ही हैं. पहला वाला कौन सा method था? Direct method, which is also called individual method. Yeah, it was called as substitution method, yeah, replacement method. So if you remember, E1 was equal to KL1, E2 was equal to KL2. So I'm just revising the formulas quickly. E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. Potentiometer was used to not only find the EMF of the unknown cell, और याद रखना कि जो बैटरी का जो मेन सर्किट होता है, दैट इज ये जो बैटरी वाला है, ये हमेशा ज्यादा रहेगा. तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते भी है तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो अननोन सेल आप यहाँ कनेक्ट करते हैं, E1 या जो भी आप कनेक्ट करते हैं, ये सेल का वैल्यू हमेशा ये सेल से कम होना चाहिए. So E is the auxiliary cell. E is nothing but the main cell. E1 must always be less than whatever is the main cell. तो ये आपको याद रखना है. So E1 upon E2 is nothing but L1 upon L2. So it can compare the EMFs also. The second one was assist and oppose method. So if you remember, E1 plus E2 is equal to KL1, and E1 minus E2, जिसको हम opposition कहते हैं, is equal to KL2. So you know that E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 upon L2, right? This can also be further written as E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. So this was used for the second method. So this you are already having it. So I'm just quickly revising and then we can. Is there anything regarding potentiometer? If you have doubt, you can mention. And the third method, if you remember, E1 is equal to KL1, V is equal to KL2. So if you remember, E1 upon V is equal to L1 upon L2. And then we had got the formula, that is R is equal to, small r is equal to RSH shunt L1 upon L2 minus 1. This can also be written as small r is equal to RSH
E1 upon V minus 1, right? So this was the potentiometer. क्लियर है? तो आज हमने जो किया वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमने कंसेप्ट पूरा समझा. सो आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है. हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच समझा. व्हाट इज करंट डेंसिटी हमने समझा. And we have also understood the important points concerning the sensitivity of a potentiometer. So can you just message me what you would like in the next lecture? MCQs तो मैं करवाऊंगी, but कोई concept अगर आपको चाहिए तो हम beginning में एक concept डाल के फिर हम MCQs कर सकते हैं. Is resonance concept clear with everybody? Before you leave, I'll just give you one point also regarding resonance, and then we can see with regard to thermodynamics. So यहाँ पर अगर हम लोग frequency versus current की बात करें, just reminding you, आपको already पता है series resonance में ये resonant frequency होता है. I think मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था कि अगर आपने रेफर किया है तो ये मैक्सिमम Imax होता है, I नॉट. ये जो है दिस इज नथिंग बट I मैक्स डिवाइडेड बाय √2, यानी कि ये RMS वाला वैल्यू है. ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इन दोनों के बीच इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं. तो ये आपको थोड़ा समझना है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो भी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं विच इज लेस देन FR इस तरफ, then what will be the nature of the graph? FL की तरफ what is the nature of the graph? Anybody? F less than FR में आपका सर्किट कैसा है? Is it resistive? Is it inductive? Is it capacitive? कैसा है? Yes, F less than FR में it is capacitive. F equal to FR में it is resistive. And F greater than FR में it is inductive. Okay. अब एक दूसरा चीज मैं ऐड कर रही हूं यहाँ पे, ये तीनों के कंसेप्ट में पावर फैक्टर कैसा होगा? पावर फैक्टर की भाषा में हम कैसे बोलेंगे उसको? कैपेसिटिव में पावर फैक्टर कैसा होता है? यहां पर याद रखना पावर फैक्टर, यहां पर रेजिस्टिव के केस में पावर फैक्टर 1 होता है. यहाँ पे cos phi 1 होता है. cos phi की बात कर रही हूँ, phi की नहीं. cos phi यहाँ 1 होता है. cos phi आपका पावर फैक्टर है. अगर f ग्रेटर देन FR है तो याद रखना पावर फैक्टर लैगिंग होता है. पावर फैक्टर लैगिंग होता है. और कैपेसिटिव की भाषा में पावर फैक्टर लीडिंग होता है. तो PF या पावर फैक्टर लीडिंग होता है. तो जब मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो याद रखना, अगर लीडिंग पावर फैक्टर क्वेश्चन में दिया है तो वो कैपेसिटिव नेचर में है. अगर वो यूनिटी पावर फैक्टर है तो वो रेजिस्टिव है. और अगर वो लैगिंग पावर फैक्टर दिया है तो आप समझ जाना वो इंडक्टिव है. सो कैपेसिटिव लीडिंग पावर फैक्टर, resistive unity power factor and inductive lagging power factor. तो ये आपको अच्छे से समझना है. I hope this is clear. और याद रखना कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो सिर्फ रेजोनेंस के कंडीशन में आएगा, जो हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन देखा था जब हम लोग फुल फिजिक्स कर रहे थे. सो क्वालिटी फैक्टर इज अ नेचर ऑफ रेजोनेंस ओनली.
ये तीनों केस में एंगल किसका नेगेटिव होता है? एंगल फाई की अगर बात करें तो यहाँ पे तो फाई 0 है, यहाँ पर और यहाँ पर कैसा होगा? फाई का एंगल किस में नेगेटिव होता है? कैपेसिटिव में, रेजिस्टिव में या इंडक्टिव में? तो याद रखना फाई नेगेटिव के केस में मतलब फाई नेगेटिव कैपेसिटिव में होता है, और एंगल जो फाई है वो पॉजिटिव होता है इंडक्टिव में, और वो 0 होता है रेजिस्टिव में। आई रिपीट, एंगल नेगेटिव होता है कैपेसिटिव में बिकॉज एंगल हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच होता है, और देयरफॉर हम जब रेफरेंस लेते हैं तो हम करंट को लेते हैं हमेशा रेफरेंस, तो इसकी वजह से एंगल नेगेटिव कैपेसिटिव में होगा, रेजिस्टिव में एंगल 0 होगा, और इंडक्टिव में एंगल पॉजिटिव होगा। तो फाई इज पॉजिटिव हियर, फाई इज 0 हियर एंड फाई इज नेगेटिव हियर। क्योंकि नाम कैसा है, मिसलीडिंग है, एकदम लीडिंग लिखा है तो लोगों को लगता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये लीडिंग है बट एंगल नेगेटिव है, ये 1 है और ये एंगल 0 है, और यहाँ पर वो लैगिंग है। So I will stop today. I hope if you need any other concept, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में भी डाल सकते हैं, आप प्रशांत सर को भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम कवर करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक वी विल डू एमसीक्यूज, या बट उसके इसमें अगर कुछ टॉपिक आगे करना है तो आप मुझे भेजते रहें, तो मैं फर्स्ट एक कंसेप्ट स्टार्ट करके फिर हम एमसीक्यूज कर सकते हैं। Okay, so stay safe. God bless you all, and good night.